The Lord Jesus Christ is holy, He's healthy, He's almighty, He's the King of authority, He's full of power, He's all-seeing God, He's all pure God, He's all compassionate God, He's a gentle God, He's a harmless God. He's all loving, He's all approachable, He's all giving, He's all protecting, He's all firmness, and He's all joyful, He's satisfied. His words are sweet, respectful, comforting words comes out of Him. Praise the Lord, church. Praise the Lord. God is good, All the time. and all the time. God is good. It is good to be in the house of the Lord. बहुत सुंदर सा समय है प्रभु यीशु मसीह के घर पे रहने के लिए. First of all, I would like to thank God for giving me a message today. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ एक वचन को देने के लिए. And I would also like to thank our pastor for training us to preach over here. और मेरे पासवान को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमें हर समय हमें ट्रेन करने के लिए. Alright, so turn your Bibles with me तो मेरे साथ अपने पुस्तक को खोलिए to the book of Jeremiah. यिर्मयाह में पुस्तक में Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह 29 वचन 11. If you are with me, you can shout an amen. Amen. So Jeremiah chapter 29 verse 11 says, यिर्मयाह 29 वचन 11 कहता है, For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. और वचन कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. Amen. Amen. Let us call to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर को बुलाएंगे. Heavenly Father, we thank you for this time, Lord. ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए. Thank you, Lord, for this wonderful day you have given us. धन्यवाद ये सुंदर सा दिन को आपने हमें दिया. Thank you for the week that went by. धन्यवाद एक हमें हमारे लिए एक अच्छा हफ्ता हमारे लिए दिया. Lord, we pray that you may speak to us through the message today. परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए वचन के द्वारा. Bless each and every one gathered here. सभी को आशीष कीजिए जो जो इधर जमा हुए हैं. We know, God, that you're here present in our midst. और पिता परमेश्वर हमको मालूम है कि आप हमारे बीच में अभी उपस्थित है. Lord, we give you all the glory and all the praise. हम आपको महिमा आदर सब देना चाहते हैं. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God has been preparing me for this message from maybe more than 2 weeks now. परमेश्वर ने वचन के लिए मुझे 2 हफ्ते के ऊपर से मुझे तैयार किया है. And I was wondering why. और मैं सोच रहा था क्यों. And I think this is a perfect message because today my son is here with me. और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक अच्छा जो प्रचार है क्योंकि आज मेरे साथ मेरा बेटा है. Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह 29 वचन 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. You see, everyone over here has a story or a journey that you all have come from. तो आप इधर देख सकते हैं कि सबके जीवन में जो है जीवन में यात्रा या कहानी होते हैं अपने जीवन के बारे में बताने के लिए. Before knowing Christ, how was your life? मसीह को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था? And after knowing Christ, how is your life now? और अभी मसीह को जानने के बाद आपका जीवन कैसा बदल गया? If you just go to think for a moment, how was your life before knowing Christ? अगर आप ये सोचने को जाएंगे कि मसीह को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था, You might say that my life was miserable. तो आप शायद कह सकते हैं कि आपका जीवन जो है पूरा नष्ट हो गया था. But when you got to know Christ, लेकिन जब यह परमेश्वर को जानने के लिए आपको मिला, you began to know that God has a perfect plan for you.
तो आप ये सोचने लगते हो कि आपके परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा योजना को तैयार करके रखा है। So from nothing, God is making you something. तो जब कुछ भी नहीं थे, यीशु मसीह ने आपको कुछ तो बनाया है। So coming to the title of my message, तो मेरे प्रचार के लिए मैं आता हूँ। God is the architect of your future. परमेश्वर आपका भविष्य का शिल्पकार है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? Do you know that God had a plan for you? That is why you're here. क्या आपको मालूम है यीशु मसीह आपके लिए एक योजना करके रखे, इसलिए आप आज इधर है। So let us see what God wants to speak to us through this verse. आइए हम अभी देखेंगे परमेश्वर हमसे ये वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। If you all are taking notes, my first point is, अगर आप लिख रहे तो मेरा पहला चीज जो है, our future is secured with the Lord. हमारा भविष्य परमेश्वर के साथ सुरक्षित है। You see, we always try to shape our own future, आप देख सकते हैं कि हम हमारे भविष्य को हम खुद रचाना चाहते हैं, but only God can direct our paths. पर केवल परमेश्वर हमारे भविष्य को रास्ता दिखा सकते हैं। Turn with me to Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. मेरे साथ नीति वचन 3, 5 और 6 में खोलिए। The Bible says, और वचन कहता है, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. वचन कहते तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। You see, the world is trying to teach us to believe in your own self. तो आप इधर देख सकते हैं जो संसार है ये सिखाता है कि खुद के ऊपर विश्वास करो। When you start believing in your own self, pride starts building up. जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो तब घमंड आपके जीवन में उठने लगता है। But you need to trust in God. पर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। You need to lean upon him. आपको उसका सहारा लेना है। Proverbs chapter 16 verse 9. नीति वचन 16:9 कहता है, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। It is God who directs us. वो परमेश्वर है जो हमें मार्ग दिखाता है। You may have certain plans in your life, आपके जीवन में शायद बहुत सारी योजना हो सकते हैं, but if God's will is not there in your life, अगर परमेश्वर का योजना आपका जीवन में अगर नहीं है तो then nothing will work. कुछ भी काम नहीं करेगा। No matter how much hard you'll try, शायद आप कितना भी आप ऐसे कार्य को कर लो, it will not happen. वो कुछ भी नहीं होगा। You need to have faith in God. आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। You need to rely upon him. आपको उसके ऊपर स्थिर रहना है। You see, God is our designer. आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा रचाने वाला है। We see in Genesis chapter 2 verse 7, हम उत्पत्ति 2:7 में हम देख सकते हैं, God had formed Adam. परमेश्वर ने आदम को जो है रचाया है। And how he had formed Adam? और कैसा उसने आदम को रचाया? Through the dust of the ground. वो जमीन के मिट्टी से। And he had formed Eve और उसने हवा को भी बनाया from the rib of Adam. आदम के हड्डी के अनुसार। So see how God has created us so beautifully? तो आप अभी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कैसा रचाया है। See, God is our designer. परमेश्वर हमारा रचाने वाला है। If God can design us, अगर परमेश्वर हमको रचा सकता है तो he can design a beautiful future for us. वो हमारे लिए भविष्य को भी तैयार कर सकता है। Can you imagine when we look at ourselves, क्या आप सोच सकते हैं जब भी हम खुद के ऊपर देखते हैं तो we have hands to do work, हमारे पास हाथ है कार्य करने के लिए, we have feet to run about, हमारे पास पैर है भागने के लिए, we have ears to listen, हमारे पास कान है सुनने के लिए, we have eyes to see, हमारे पास आँख है देखने के लिए, we have the breath of life which God has given us. हमारे पास वो जीवन का श्वास है जिस यीशु मसीह ने हमें दिया है। Amen? आमीन।
So God is a designer of our future. तो परमेश्वर हमारा भविष्य का रचाने वाला है। Now let us see some of the Bible characters where God had a perfect plan for them. आइए अभी हम देखेंगे शास्त्र से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर ने योजना को तैयार करके रखे हैं। Genesis chapter 37 onwards. उत्पत्ति 33 से हम देखेंगे। We see the biblical character by name Joseph. हम ऐसे देख सकते हैं जिसका नाम यूसुफ है। Now who was Joseph? अभी यूसुफ कौन है? Joseph was the son of Jacob. यूसुफ जो है याकूब का बेटा है। We all know the story about Joseph. हम सबको यूसुफ का कहानी मालूम है। God had a perfect plan for him. परमेश्वर उसके लिए एक सुंदर सा योजना तैयार करके रखे थे। Joseph was a dreamer. यूसुफ जो है एक सपना देखने वाला था। And Joseph was the favorite son of Jacob. और यूसुफ जो है याकूब का प्यारा लड़का था। But his brothers, पर उनके जो भाई है they were jealous of him. वो उससे जलन हो गए थे। Why? Because he was a dreamer. क्यों? क्योंकि वो एक सपना देखने वाला था। And he was also the favorite son of Jacob. और वो याकूब का जो है वो पसंदीदा लड़का भी था। So Joseph one day told the dream that he had to his brothers and his family. और यूसुफ को एक दिन ऐसा करना पड़ा कि वो अपने भाई को और उसके परिवार को बताना पड़ा। He told the dream. वो सपना को बताया। What was that dream? वो सपना क्या था? That dream was that he would become a ruler someday. और वो सपना था कि वो एक दिन एक आज्ञा करने वाला एक व्यक्ति बनेगा। No one believed him. कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा। They laughed at him. वो सब उसके ऊपर हंसे। And his brothers were jealous of him. और उसके भाई उसके ऊपर जलन करने लगे। So what happened? तो क्या हुआ? He was then sold to the Ishmaelites. तो वो जो है इश्माइलाइट्स के इधर वो उससे भेजा गया। His brothers had made a plan to kill him actually. उनके भाई ने जो है ऐसा योजना करके रखा था कि उसे मार देंगे करके। But they sold him to the Ishmaelites. लेकिन उन्होंने इश्माइलाइट्स को बेच दिया। But still God had a plan for Joseph. लेकिन पर भी यूसुफ के लिए परमेश्वर ने कुछ तो योजना करके रखे थे। So what did God do for him? तो क्या परमेश्वर ने उसके लिए किया? That dream which Joseph had, वो जो सपना यूसुफ के पास था, it was God who had given him that dream. वो परमेश्वर था जिसने उसको सपना दिया। And towards the end, we see he becomes the ruler of Egypt. और अंत में हम देख सकते हैं कि वो इजिप्ट का एक आज्ञा करने वाला बन गया। So God uses the foolish of the world तो परमेश्वर दुनिया के मूर्ख लोग को इस्तेमाल करते हैं to put shame the wise. कि वो शर्मिंदा कर सके ज्ञानी लोग को भी। Are you discouraged today? क्या आप उत्साह नहीं हो आज? Do you have problems in your life? क्या आपके जीवन में समस्या है? Sometimes we do pray for our families to get saved, right? कभी कभी हम अपने परिवार के लिए उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ना, But it takes time. पर वो थोड़ा समय लेता है। Jeremiah chapter 29 verse 11 says, यिर्मयाह 29:11 कहता है For I know the thoughts that I think towards you, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, saith the Lord. वो परमेश्वर कहता है। Your job is to keep praying. आपका काम है कि आप प्रार्थना करते रहो, God will fulfill that. परमेश्वर उसे पूरा करेगा, But according to His timing. लेकिन उसके समय पर। That is why we need to rest upon Him. इसीलिए उसके ऊपर हमें शांति पाना है। If you're discouraged, अगर आप उत्साह नहीं हो, encourage yourself by reading the Word of God. खुद को उत्साह करो परमेश्वर का वचन को पढ़ के, That will charge you up. वो तुम्हें उत्साह करेगा। The next biblical character here is हम दूसरा व्यक्ति को हम देख सकते हैं, Moses. वो मूसा है। We know the life of Moses. हम सबको मूसा के जीवन के बारे में पता है। God had a perfect plan for Moses. परमेश्वर के पास मूसा के लिए एक सुंदर सा योजना था। Moses was the meekest man in the Bible. मूसा जो है सबसे नम्र व्यक्ति था पुस्तक में। He could not speak properly. उसे सही से बात करना नहीं आता था।
he had killed an Egyptian man. उसने एक इजिप्टियन व्यक्ति को उसने मार डाला था, But God had a plan for him. लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक सुंदर सा योजना था। He had an encounter with God. उसके साथ परमेश्वर का एक मेल मिलाप था। So what happened to Moses' life? तो क्या हुआ मूसा के जीवन में? Moses' life was fully transformed. मूसा का जीवन जो है पूरा बदल गया था। Can you believe Moses is the man who brought the Israelites out of Egypt? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मूसा ही जो व्यक्ति है जिसने इज़राइल लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाला था? It was God who was in control of his situation. वो परमेश्वर था जिसके जीवन में मूसा का हाथ था। God can do that in your life also. और परमेश्वर आपके जीवन में भी ये कर सकता है। You just have to have faith in him. आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। And how do we come and get an encounter with Christ? और हमको कैसा परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप रखना है? Is by studying his word, वो परमेश्वर का वचन को पढ़ के, by meditating upon it उसके ऊपर मेडिटेट करके, day and night. दिन और रात। God is going to speak to you today. परमेश्वर आपके साथ बात करने वाला है। 1 Samuel chapter 16 onwards, पहला शमूएल 16 से we see the next biblical character हम दूसरा व्यक्ति को हम देख सकते हैं, is David. वो दाऊद है। Now who was David? अभी दाऊद कौन था? David was the son of Jesse, दाऊद जो है जसी का पुत्र था, and the prophet Samuel had anointed David to be king. और प्रॉफेट शमूएल जो था दाऊद को अभिषेक किया। David was just a mere boy, दाऊद जो है सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, a keeper of the sheep. एक चरवा भेड़ का रक्षा करने वाला। Now God had used him to kill Goliath. अभी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि वो गोलियत को भी मार सके। God had protected him from King Saul. परमेश्वर ने उसे साउल से बचाया। And God gave David a close friend by the name of Jonathan. और परमेश्वर ने दाऊद को एक ऐसे निकट जो जिगरा दोस्त है उसका नाम जोनाथन है ऐसा दिया। David is considered one of the greatest kings in the Bible. दाऊद जो है एक बड़ा राजा करके पुस्तक में लिखा गया है। He has written half of the book of Psalms. उसने आधा भजन संगीता को उसने लिखा है। From just a mere boy जो एक साधारण व्यक्ति था to one of the greatest kings. एक बड़ा राजा बन गया। But there is just one king of kings. लेकिन परंतु उधर एक ही राजा का राजा है, That is the Lord Jesus वो Christ. केवल यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn back to Jeremiah chapter 29 verse 11. वापस हम यिर्मयाह 29 वचन 11 में हम पढ़ेंगे। Let us see what God wants to speak to us through this verse. हम वापस देखेंगे परमेश्वर हमको क्या कहना चाहता है। For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, thoughts of peace. वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। Let us ponder on this word now. हम अभी ये वचन में हम गौर करेंगे। Now when we say peace, what does peace mean? जब भी हम अभी शांति के बारे में हम बात करते हैं तो शांति का मतलब क्या है? People are seeking peace from the world. जो लोग हैं ये दुनिया से शांति पाना चाहते हैं। What are they seeking peace from? क्या शांति वो पाना चाहते हैं? Drugs, ड्रग्स, alcohol, शराब, money, पैसे, status, स्टेटस, relationship, संबंध में or food? और खाना। Oh yes, that's right. Food also can give you peace. ऐसे भी खाना भी जो है आपको शांति दे सकता है। People love to eat food. लोग खाना खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। Now food is not bad, और खाना अभी जो है गंदा नहीं है, but eating too much is bad. और अभी ज़्यादा खाएंगे तो बुरा है। So the world is seeking, the people are seeking peace from the world.
तो जो लोग हैं वो दुनिया से शांति पाना चाहते हैं, but only Jesus can give you peace. पर केवल परमेश्वर आपको शांति देगा। Turn to John chapter 14 verse 27. योना 14:27 में हम खोलेंगे। John chapter 14 verse 27. योना 14:27। The Bible says, और वचन कहता है, peace I live with you. इसीलिए यिर्मयाह John chapter 14 verse 27. ओके, Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। See, God wants to give us peace. तो परमेश्वर हमको शांति देना चाहता है। Only Jesus can give you peace केवल यीशु आपको शांति देगा, because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। And it further says in Jeremiah chapter 29 verse 11, और वो आगे यिर्मयाह 29:11 में कहता है, not of evil. वो बुराई का नहीं। God would never think evil of you परमेश्वर आपके बारे में कभी बुराई की नहीं सोचेंगे, because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। John chapter 3 verse 16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. योना 3:16 कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया कि जो भी उसके पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। So God would never think evil of you. तो परमेश्वर आपके लिए कभी बुराई नहीं सोचेंगे। He has got a perfect plan for you. आपके लिए एक योजना को उसने तैयार करके रखा है। Do not be worried. चिंता मत कीजिए, Just trust in God. केवल उसके ऊपर विश्वास कीजिए। Do you know what is the full form of Bible? क्या आपको बाइबल का पूरा नाम पता है? नहीं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है आपको पता है? The full form of the Bible is जो पूरा नाम बाइबल का है वो basic instructions before leaving earth. छोटी छोटी ऐसी चीजें दुनिया को छोड़ने से पहले सीखना चाहिए। See, God has given us the word to study and meditate upon it. तो परमेश्वर ने हमको वचन दिया कि हम उसमें गौर करके हम दिन रात उसमें गौर कर सके, Because there is only one way to heaven, क्योंकि उधर केवल एक ही रास्ता है स्वर्ग के लिए, and that is through Jesus Christ. और वो परमेश्वर ही है। Amen? आमीन। Jesus said, I am the way, the truth and the life. और परमेश्वर कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। No man cometh to the Father but by me. कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है मेरे सिवा। So, when we talk about peace, तो जब हम शांति के बारे में हम बात करते हैं, we have to understand that Jesus is the only one who can give us peace. हमको ये जानना है कि परमेश्वर ही है जो हमको शांति दे सकता है। That is my second point. वो मेरा दूसरा पॉइंट है। My third point for today is मेरा तीसरा जो चीज है आज के लिए, Jeremiah 29 verse 11. यिर्मयाह 29:11। For I know the thought that I think towards you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशली की है, और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। My third point is, in Jesus our end is eternity. मेरा तीसरा जो चीज़ है वो है कि परमेश्वर के जीवन में सब अनंत है। If you have Jesus today, अगर आपके पास परमेश्वर है आज, then you're going to live with Him forever. तो आज आप यीशु मसीह के साथ कभी भी आप जी सकते हैं, Forever. कभी भी। So God is in control of our future. तो परमेश्वर हमारे भविष्य का एक कंट्रोल कर रहा है। See, no one knows what God has prepared for us. तो किसी को भी मालूम नहीं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया, No one. किसी को भी नहीं। Turn to 1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहला कोरिन्थियों 2:9 में,
The Bible says, और वचन कहता है, but as it is written, परंतु जैसा लिखा है, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चीज में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। Trust in Jesus. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Give your life to him now. आपके जीवन को उसके हाथ में आज ही दे दो। If there is anyone over here who has not yet accepted Christ, अगर कोई है कि अब तक परमेश्वर को उन्होंने स्वीकारा नहीं, then you have to accept Christ now, तो आज आपको परमेश्वर को स्वीकारना है, before it is too late. वो बहुत देर होने से पहले। You need to give your life to him. आपको आपका जीवन को उसके हाथों में देना है। How? कैसे? First of all, you need to confess your sins. सबसे पहले आपके पाप का पश्चाताप करना है। You need to get right with him. आपको उसके साथ सही संबंध रखना है। The Bible says we are all sinners. वचन कहता है कि हम सब लोग पापी हैं। There are none righteous. इधर कोई भी धर्मी नहीं है, No, not one. कोई भी नहीं, But God is righteous. पर केवल परमेश्वर धर्मी है। God is holy. परमेश्वर पवित्र है। Jesus, who had no sin in him, became sin for us. परमेश्वर जिसके जीवन में पाप ही नहीं था, हमारे लिए वो पाप बना। He died for us on the cross of Calvary. हमारे लिए मारा गया वो सलीब पर। He shed his precious blood for us. अपने कीमती लहू को उसने बहाया। See, God is promising something in Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह 29 वचन 11 में परमेश्वर एक वादा करता है For I know the thought that I think towards you, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। saith the Lord. परमेश्वर कहता है, Thought of peace वो हानि की नहीं, and not of evil, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, to give you an expected end. और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। We all want a beautiful end, right? हम सबको एक अनंत अंत चाहिए ना? We all want to be in heaven, right? हम सबको स्वर्ग में रहना है ना? Then why are we not accepting Christ in our life? तो क्यों आज हम परमेश्वर को स्वीकार रहे नहीं हैं? Why are we not being obedient to him? क्यों हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं? You see, God forgives, आप देख सकते हैं परमेश्वर हमें क्षमा करता है, but we need to confess. लेकिन सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। We need to get right with him. हमें उसके साथ सही होना है। When we confess our sins, जब भी हम पश्चाताप करते हैं, he is faithful and just to forgive our sins. वो हमको पाप हमें क्षमा कर सकता है। The Bible says Jesus has the power to forgive sins over the earth. और वचन कहता है कि परमेश्वर के पास एक सामर्थ है हम सबको क्षमा करने के लिए। So why don't you come to him? तो क्यों आप उसके सामने आज नहीं आ रहे हो? Philippians chapter 1 verse 21. फिलिपियों 1:21 The Bible says, for to me to live is Christ and to die is gain. मुझे परमेश्वर पे जीना लाभ है और मरना लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain. मसीह पे मुझे जीना मसीह में है और मरना लाभ है। If you die tonight, अगर आज रात को अगर आप मरोगे तो are you sure you're going to end up in heaven? क्या आप जानते हो कि आप स्वर्ग में आप खत्म होगे? This is a very important question. Many people ask that. ये बहुत एक कीमती प्रश्न है, सब लोग ये पूछेंगे। Not many know the way to heaven. ऐसे बहुत सारे लोग को नहीं मालूम स्वर्ग का रास्ता क्या है। People think that good works will take you to heaven. लोग सोचते हैं कि अच्छे काम स्वर्ग में ले जा सकता है। Good works cannot take you to heaven. अच्छे काम अच्छे कार्य स्वर्ग में हमें नहीं ले जा सकते। But your faith in Lord Jesus Christ will take you to heaven. लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर वो आपको स्वर्ग में लेके जा सकता The है। Bible says that our good works are as filthy rags. हमारे जो अच्छे कार्य है
वो सब एक गंदे कपड़े जैसे है। You see, God gave us grace. आप देख सकते हैं परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है। He gave us unconditional love. वो हमें एक ऐसा अनंत प्यार देता है। And He says that I know the plan that I have for you. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जो योजना करके रखा हूँ। He has planned it in such a way that you will be astonished. Oh, और wow. उसने ऐसा योजना करके रखा है जो आपके जीवन में बहुत एक इस्तेमाल हो सकता है। Even about when I talk about my life, अगर आज मैं मेरे जीवन के बारे में भी अगर मैं बताना चाहूँ तो I see that God had a perfect plan for me. मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक योजना को तैयार करके रखे थे। I wanted my family to get saved. मैं चाहता था कि मेरा परिवार उद्धार पाए, So I started praying about that. तो मैं मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। I kept on praying, मैं प्रार्थना लगातार करने लगा and there were days when I used to cry. और वो ऐसा दिन था जिधर मैं रोता था। And today I can see my family sitting over here and they have accepted Christ. और आज मैं देख सकता हूँ कि मेरा परिवार आज बैठा है Amen? उद्धार पाके। आमीन। So with God, all things are possible. तो परमेश्वर के जो साथ है सब चीज़ संभव है। It is possible. सब संभव है। All you got to do is आप सबको जो क्या करना है, keep praying. लगातार प्रार्थना कीजिए। Keep asking God, आप परमेश्वर को पूछते रहिए, because God will answer your prayers. क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थना को वो उत्तर देगा। I wanted my mom and dad to get saved before my child could come into the world. मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप जो है उद्धार पाए सबसे पहले, मेरा बेटा आने से पहले। And that what happened. और वही जो है हुआ। See, God had a perfect plan. That's the reason why we are all here today. आप इधर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा योजना को तैयार किया, इसलिए आज सब लोग आज हम इधर हैं। So trust in God. तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए। I hope this message is a blessing to you all. और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबके लिए आशीषित है। Let us close in prayer. आइए हम प्रार्थना में बंद करेंगे। All heads bowed down. सबके सर झुके हुए, Close your eyes. आपकी आंखों को बंद कीजिए। I believe God has spoken to you all through the message. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपके जीवन में बात किया है। Thank you, Lord, for this wonderful message, Lord. धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर सा वचन के लिए। Thank you for speaking to us to Jeremiah chapter 29 verse 11. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए यिर्मयाह 29 वचन 11 से। Lord, I know that you have a perfect plan for each and every one of us. पिता हमको पता है कि आप हमारे लिए एक सुंदर सा योजना को तैयार करके रखे हम सब के लिए। No matter whatever situation we are going in our life, कौन सा भी स्थिति आने दे पिता परमेश्वर, I know that you will protect us. हमें पता है कि आप हमें संभाल के रखेंगे। Lord, we surrender our life into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथ पे हम समर्पण करते हैं। Lord, use us for thy glory पिता आप हमें इस्तेमाल कीजिए so that you may get the glory. ताकि आप वो महिमा पा सके। We thank you, Lord, for each and every one gathered here. हम आपको धन्यवाद देना चाहिए सारे लोगों को। I pray for your blessings over them. हम आपके आशीष के लिए हम मांगते हैं। And I pray, God, that as they go home, और जैसे वो लोग घर जाते हैं पिता परमेश्वर, that they may remember this verse today, ये वचन को वो लोग याद करने के लिए सहायता कीजिए that you have a perfect plan for them. कि आप उनके लिए एक सुंदर सा योजना तैयार करके रखे हैं। In Jesus' mighty name I pray. परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ। And all God's people said, Amen. and again, Amen. and again. Amen. Hallelujah.